These days, everybody is talking about pollution, wearing masks. I had to take it out because of the video. सब पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सबके गले खराब है, everybody is wheezing, coughing, having respiratory disorders. You go to the hospitals, clinics, they are flooded with people with respiratory disorders. And it's all of it. I think एक चीज है which nobody is talking about. Animals, pets, हमारे companion animals. You know, थोड़े दिन पहले मैंने एक image देखा and I cannot really unsee that image because it struck me really hard. एक retriever dog है, golden retriever, and this kid is sitting with a nebulizer. Just imagine. हम लोग तो बोल देते हैं हमें क्या परेशानी हो रही है. These kids, our companion animals, our pets, cannot even talk about it. This little kid is sitting uncomfortably with a nebulizer and he had bronchitis. Just imagine. कोई सोचता भी नहीं है कि पता नहीं क्यों ये थॉट ही नहीं आता कि अगर एक एनवायरनमेंट हमारे लिए पॉइजनस है, एयर हमारे लिए टॉक्सिक है, तो वो उतनी ही टॉक्सिक हमारे पेट्स के लिए भी है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो आपको नहीं बोल सकते और उन्हें नहीं पता क्या करना है. सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा उनके लिए. सो honestly, this video is not really an expert advice. I would say it is more from a pet parent जो खुद scared है about what is going around. Of course, मुझे अपने लिए precautions लेना पता है because when we talk about pollution, we talk about masks, we talk about shutting schools, we talk about elderly, we talk about kids, human kids. What nobody talks about is pets, our companion animals. You know, today in the morning while I was walking my kids, my elder kid, Donut, he started wheezing. थोड़ा उसको discomfort feel हुआ. And there was this pet parent who was passing by. उसने बोला इसको क्या हो रहा है? मैंने कहा पता नहीं, शायद pollution की वजह से हो रहा होगा. And she asked a very innocent question. She said, dogs को भी ये होता है क्या? Just imagine the kind of ignorance, the kind of, I would say, lack of education. डॉग्स को क्यों नहीं होगा? दे आर ब्रीदिंग द सेम एयर, दे आर ब्रीदिंग द सेम पोल्यूशन. उनका भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उनके अंदर भी वही पोल्यूशन जा रहा है जो हमारे अंदर जा रहा है. बट वी डोंट रियली थिंक मच अबाउट इट. बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. आई वुड से हम जो कर सकते हैं वो ये कि हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं. एंड लाइक आई सेड, दिस इज नॉट a video from an expert or a doctor or veterinary. It is a video from a pet parent who's concerned like you are. It's just something that I felt I should share. So here are some of the tips जो आप follow कर सकते हैं during the day. Just precautionary चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. Because I also understand we talk about leaving the city. अब 2 से 3 महीने के लिए सबके लिए city छोड़ के जाना, it's absolutely not practical. Given कि आपके कुछ वर्क रूटीन्स होंगे, कुछ कमिटमेंट्स होंगे, देन लाइफ, फाइनेंसेस, देयर सो मच टू टेक केयर ऑफ. तो 3 महीने के लिए ऑफ कोर्स आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते. जो आप घर पे रह के कर सकते हो अपने पेट्स के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ. द फर्स्ट वन इज कि आउटडोर एक्टिविटीज आप लिमिट करें जब AQI लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हों. अगर वॉक अवॉइड कर सकते हैं तो परफेक्ट है. अगर वॉक अवॉइड नहीं हो सकती तो वॉक का ड्यूरेशन कम कर दीजिए. द सेकेंड इज डोर्स एंड विंडोज आप प्लीज शट रखिए, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स. आपके डॉग्स मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हैं, तो जहां पर भी वो सोते हैं, ट्राई एंड यूज सम एयर प्यूरिफायर, विच एवर एयर प्यूरिफायर इज कन्वीनियंट फॉर यू टू बाय. एटलीस्ट उस रूम की हवा उनके लिए अच्छी होगी, बेटर होगी. Then just keep watching for the signs कि कॉफ तो नहीं कर रहे, वीज तो नहीं कर रहे, कोई नेजल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट तो नहीं है. अगर कुछ भी ऐसा है और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट कर रहा है, प्लीज go to your nearest vet. Do not ignore these signs because if you ignore them and they keep inhaling the same toxic air for long durations, it can worsen. Like I told you in the beginning, I saw this dog with जिसको bronchitis हो गया because of high AQI levels. तो उस उतने painful experience ना हो आपके pet के, just keep watching closely. कोई भी आपको ऐसे signs नजर आए, because you know, just like humans, they feel all of it. They feel eye irritation,
ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है उन्हें, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है, नोजिया होता है. देयर सो मेनी थिंग्स दैट डॉग्स गो थ्रू, स्पेशली आई वुड से द सीनियर डॉग्स. अगर छोटा है, थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो शायद नहीं होगा, बट सीनियर डॉग्स में द प्रोबेबिलिटी इज हाई. हैविंग सेड दैट, no matter what the age, breed, size is, keep watching for these signs. और घर पे रह के आप जो भी precautions ले सकते हो प्लीज लीजिए, because they will never ever be able to tell you उनको कैसा फील हो रहा है. You as a pet parent will have to take care of them as kids, as somebody who cannot communicate their discomfort. And I would just say, हम इतना पोल्यूशन और जो सबकी बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, चाहे वो दूसरी स्पीशीज ही क्यों ना हो, लेट्स जस्ट इंक्लूड देम, क्योंकि एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेट पेरेंट्स को. मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू. तो जो बेसिकली आप खुद के लिए प्रिकॉशंस यूज करें, और मास्क तो आप नहीं बना सकते डॉग्स को पूरे टाइम, पर जो कर सकते हो घर में रह के उनके लिए प्लीज करिए. It's time to ask the right set of questions. It's time to question that if this air isn't safe for us, then how can we assume that it is safe for them? Please take care of yourselves and your companion animals.